Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In the last few lectures, we have started this chapter of floods, and in the last lecture, we have seen a flood mitigation. We have seen there are two types of measures to mitigate the flood disaster. First one was a structural mitigation measure, and second one was a non-structural mitigation measure. So we are going to see a structural mitigation measures, and we have already seen some of the measures like storage reservoir and levees. So these both we have seen in the last lecture. Now in today's lecture we are going to see further. So let's start with the flood walls. A levee is a earth dike or an embankment, while a flood wall is usually of a masonry or a concrete, right? Flood walls are used in a developed area where it is difficult to obtain enough land for the construction of levees, right? जहाँ पे भी ये levees हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे भी इनफ लैंड अवेलेबल नहीं है, जो डेवलप्ड एरिया है, सो वहाँ पे हम लोग फ्लड वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, और बेसिकली वो मैसनरी और कंक्रीट से बनी हुई होती है. So because of a flat slopes, a levees required a very large width. If the land is costly or limited, it is more economical to construct a flood walls. So these are a masonry or a concrete wall, as I said earlier. So it is constructed just on the river bank. A flood wall is a sort of a gravity dam constructed along the river. Proper foundation should be provided, and all precautions should be taken against the scoring. If there is a black fill on a land side of a wall, it acts as a earth retaining wall, right? यहाँ पे फ्लड वॉल बेसिकली वर्क कैसे करता है, तो वो ग्रेविटी डैम के जैसे कंस्ट्रक्ट होता है. उसके नीचे प्रॉपर फाउंडेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड उसको कंस्ट्रक्ट करते टाइम जो स्कोरिंग के प्रिकॉशंस होते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं. और अगर वहाँ पे बैकफिल में लैंड साइड्स है तो वो अर्थ रिटेनिंग वॉल की तरह एक्ट करता है. अर्थ रिटेनिंग वॉल क्या होता है वो ऑलरेडी हम लोगों ने आगे वाले कोई सब्जेक्ट्स में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ रिटेनिंग वॉल, राइट. सो ये फ्लड वॉल की एक फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे वॉल कंस्ट्रक्ट की गई होती है रिवर बैंक्स पे. ये जो रिवर है उसके जस्ट बैंक के ऊपर ही ये ऐसे वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अगर फ्लड की कंडीशन आती है तो ये जो पीछे वाला रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे पानी नहीं जाता है, जब तक मतलब ये जितनी लेंथ है उतनी लेंथ तक वो रिटेन करके रखता है. ठीक है. Floodways. So a low laying area along the course of a river are known as a floodways. Floodways are the large depressions into which a portion of a flood water diverted from a river, and the water diverted from the river through a natural or a artificial channel is temporarily stopped during the rising flood. So after the flood recedes in a river, the water shorted in this depression and is permitted to flow back into the river. So एक flood way जैसा बनाया हुआ होता है, large depression जैसा होता है, जहाँ पे भी पानी हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं flood का, right? The floodway serves two functions. The first one is they create a large shallow reservoirs which store a portion of a flood water and hence decrease the flow in a main channel below the diversion. And second one is they provide an additional outlet from a water and hence increase the velocity and decrease the stage for some distance above the point of diversion. सो बेसिकली दो मेन फंक्शंस है. जो सबसे पहला है एक रिजर्वायर जैसा, वो लार्ज रिजर्वायर जैसा हमें एक स्टोरेज प्रोवाइड करता है. एंड सेकेंड रीज़न क्या है कि जब वाटर को हम लोग एडिशनल आउटलेट में प्रोवाइड करते हैं तब वो वेलोसिटी उसकी हाई हो जाती है. ठीक है. The construction of a floodway is limited by a topography of a valley and availability of a low value land which can be used for a floodways. As the floodways are normally used only during the period of a major floods, the land can be used for agricultural in a rest of the period.
The diversion channel carrying the water from a river to a floodways may be naturally or artificial. Water may be admitted to the floodways in a number of ways, and the water may be diverted over a low spot in a natural bank of a river or through a gap left in a levee line. So in some cases a fuse plug levee is provided. So basically ये जो फ्लड वे है उसकी जो हम लोग लैंड फ्लड वे में यूज़ करते हैं वो हमें कब यूज़ करनी है, सिर्फ जब भी मेजर फ्लड्स आते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं. सो रेस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वो सेम लैंड को एग्रीकल्चर यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एंड जो डाइवर्जन चैनल पानी कैरी करके लाता है वो नेचुरली या आर्टिफिशियल होता है, राइट. सो वो डिपेंड्स करता है फ्लड की कंडीशन कैसी है, मतलब मेजर फ्लड है माइनर फ्लड है उसके ऊपर डिपेंड्स करता है. ये है फ्लड वेज की एक फिगर आप देख सकते हो. यहाँ पे एक रिजर्वायर स्टोरेज जैसा बनाया हुआ होता है रिवर बैंक के साइड्स में, राइट. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है चैनल इम्प्रूवमेंट वर्क्स. So channel improvement as a flood control measure can be used to reduce the river stage at a specific point in the reach. A river can be made to carry a higher discharge at lower levels by merely improving its hydraulic conditions. So basically the flood stage of any section can be substantially reduced by improving the hydraulic capacity of the river. So channel improvement increases the discharge capacity of the river by increasing the flow area, right, and decreases the surface roughness. So basically surface के अंदर जो roughness होती है उसको हम लोग decrease करते हैं और उसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है. रिवर की मतलब कि उसका फ्लो एरिया जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं. तो चैनल इम्प्रूवमेंट हम लोग कौन सी तरीके से कर सकते हैं, तो इंक्रीजिंग द चैनल सेक्शन, रीअलाइनमेंट ऑफ द रिवर, इंक्रीजिंग द velocity in the river, increasing the waterway at a crossing, straightening at and meandering type river by cutoff or to reduce the travel time of the flood. So ये बहुत सारे improvement works है, channel improvement works. So ये मैंने जो बोला वो यही सेम है. So various methods of channel improvement can be summarized. So जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल को इंक्रीज कर सकते हैं. So जिसकी वजह से हम चैनल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सेकेंड है रीअलाइनमेंट ऑफ द चैनल अलोंग द शॉर्टर रूट, ठीक है, शॉर्टर रूट प्रोवाइड कर सकते हैं. इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो इन द चैनल, राइट. चैनल के अंदर जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी हम लोग हाई कर सकते हैं. डिक्रीजिंग द वाटर वेज एट द क्रॉसिंग. सो इंक्रीजिंग द साइज इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल, वो कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. सो द इंक्रीज इन अ साइज ऑफ अ क्रॉस सेक्शन टू कैटर फॉर अ हाई डिजाइन फ्लड विदाउट स्पिलिंग ओवर द बैंक इज इकोनॉमिकली प्रैक्टिकेबल, राइट. So only a small streams in the cases of a larger rivers. Such a method is very expensive and moreover there is a problem to dispose of excessive excavated material, right. हम लोग अगर क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं रिवर का, राइट, चैनल का, तो वो जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती है उसके अंदर ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है एंड इकोनॉमिकली भी. बट जो मेजर रिवर्स है, बड़ी रिवर्स है, उसके अंदर हम लोग ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि उसका जो मटेरियल निकलता है, एक्सकेवेटेड मटेरियल, उसको डिस्पोज कहाँ करें, उसका प्रॉब्लम हो जाता है. सो ये एक है इंक्रीजिंग द साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ऐसे था तो उसको इंक्रीज करके ऐसे हम लोग इसको एक्सकेवेट करके उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा सकते हैं. रीअलाइनमेंट ऑफ द चैनल अलोंग अ शॉर्टर रूट. सो इन दिस this is a practicable only in the case of smaller stream. Again this is also practicable in a smaller streams. जैसे आगे वाला था कि अगर larger stream में हम लोग करने जाते हैं तो क्या होता है, इकोनॉमिकली हायर हो जाता है. सो अगेन वो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है. however this method is economically practicable for a smaller streams with the manageable low discharge.
ये है रीअलाइनमेंट वे फ्रॉम अ स्टीप स्लोप। सो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका रीअलाइनमेंट, जैसे यहाँ से रिवर जा रही है तो उसका रीअलाइनमेंट मतलब उसको डाइवर्ट कर सकते हैं ऐसे। सो ये है रीअलाइनमेंट ऑफ द चैनल अलोंग अ शॉर्टर रूट, राइट। उसको हम लोग डाइवर्जन भी बोल सकते हैं कि उसको डायरेक्टली डाइवर्जन प्रोवाइड कर दे। थर्ड है इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो इन द चैनल। सो a velocity of a flow in a channel can be increased by deepening the river, reducing the width, or shortening the channel lengths at the bend by artificial cutoffs, right? So हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। Again we can remove the barriers in the channel section and lining the channel to improve this coefficient of a rugosity. So all these methods are adopted for increasing the velocity of the flow if they are economical and practicable, right? So ये है increasing waterway at the crossing के different steps. So changes in a land or a stream corridor कर सकते हैं, change in a geomography and hydrology, change in a stream hydraulics, change in a function such as habitat, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। सो ये सारे चेंजेस कर सकते हैं हम लोग फॉर इंक्रीजिंग द वाटर वे एट द क्रॉसिंग। So generally there are a number of crossing on a river such as bridges, culverts, aqueducts. So ये सारी चीज़ें हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। So the inadequacy in the waterways of bridges, culverts, canal cross drainage works, etc. may result in aggravating the flood situation. So to avoid this problem, adequate waterway should be provided at the crossing after the proper elevation and evaluation and ultimate drainage requirement of a basin at the time of a proposed crossing across the drainage line. So ये है waterways increase करने, मतलब जो क्रॉसिंग वाला पोर्शन होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे क्रॉसिंग वाला पोर्शन होता है वहाँ पे हम लोग वाटरवेज प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे। The overall effect of the various methods of a channel improvement is to reduce the stage of a river at the time of the flood, and after the adopting the measure of channel improvement, the banks of the channel are not overtopped or less frequently overtopped during the high flood discharge. So basically हम लोग channel improvement works apply करते हैं तो उसकी वजह से जब फ्लड आता है तब वो बैंक्स रिवर बैंक्स को ओवरटॉप नहीं करता है, और अगर करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेस हो जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ वो ओवरटॉप नहीं होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि लास्ट टॉपिक है ये पर्टिकुलर चैप्टर का, वो है फ्लड डैमेज एनालिसिस। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लड डैमेजेस, डायरेक्ट डैमेज एंड इनडायरेक्ट डैमेज, राइट। तो डायरेक्ट डैमेज में क्या क्या आएगा? सो डायरेक्ट डैमेज रिजल्ट्स ड्यू टू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑफ अ फ्लड वाटर, फॉर एग्जांपल डैमेज टू क्रॉप्स, damage to houses, damage to human lives, damage to livestock, damage to public utilities, roadways, rail, मतलब कि पानी सारी जगह पे आ जाता है और उसकी वजह से जो डैमेजेस होते हैं वो डैमेजेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट डैमेजेस, मतलब कि पानी डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में आता है फ्लड वाटर। और इनडायरेक्ट डैमेजेस क्या होते हैं? सो इनडायरेक्ट डैमेजेस रिजल्ट टू प्रॉपर्टीज और सर्विसेज which are not touched by a flood water but is a loss or damage as a result of interrupted trade or a diversion of a rail or a roadways traffic or other effects. For example, factories, shops, business centers in a flood affected area may be closed, so this resulting in a loss of their owners, stoppage of industrial production and temporary unemployment of the workers। ठीक है, क्या होता है कि फ्लड कंडीशन होती है तो सारी शॉप्स, सारे बिजनेस, सारी फैक्ट्रीज सब क्लोज हो जाता है, तो जो वर्कर डेली बेसिस पे काम करते हैं वो उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, ठीक है, उन ओनर्स का भी नुकसान होता है और उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी भी कम हो जाती है। सो वो सारे डैमेजेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट डैमेजेस होते हैं, ठीक है। सो ये है डायरेक्ट डैमेजेस।
So there are two types of loss due to a flood disaster: tangible losses and intangible losses. So tangible losses are those which can be estimated in a terms of some money value. उसको हम लोग कोई मनी वैल्यू से काउंट कर सकते हैं कि इतना कॉस्ट, इतने लॉसेस हुए. तो टेंजिबल लॉसेस में कौन से लॉसेस आ सकते हैं? तो डैमेजेस ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टीज लाइक बिल्डिंग. कोई किसी का घर टूट गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो घर 55 lakhs का था, राइट. उसके अंदर फर्नीचर था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे, तो फर्नीचर 15,000 का था, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 50,000 की थी. तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं इन द फिगर कि इतने हज़ार का खर्चा हुआ, इतने हज़ार का डैमेज हो गया. सेकेंड है लॉस ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स के लिए भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि अगर ये क्रॉप होता तो 15,000 का बेनिफिट होता, तो 15,000 का लॉस हो गया हमें. उसके बाद है लॉस ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ अ ट्रेड एंड बिजनेस, राइट. जैसे कि कोई एक शॉप है, उसका डेली का 1500 रुपये का इनकम है, तो वो बोल सकता है कि मेरे 1500 रुपये का लॉस हो गया. लॉस ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ रोड एंड रेलवे कम्युनिकेशंस. जैसे कि रोड एंड रेलवे कम्युनिकेशन के को यूज़ करके हम लोग ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई एक जगह से दूसरी जगह पे माल सामान बेचते हैं, तो वो भी लॉस हो जाता है कि वो वहाँ पे ऑन टाइम नहीं पहुँच सकता है. कॉस्ट ऑफ रिलीफ मेजर्स. सो ये सारे लॉसेस है वो टेंजिबल लॉसेस के अंडर में आते हैं. So damage to properties such as a building, public utilities, roadways, bridges, canals, embankments and telephonic lines, electric lines bear significant part of a flood damages. These all are damage are assessed on the basis of estimated cost of repair. So that's why these all are called as a tangible losses. डैमेज टू द क्रॉप्स, जो मैंने आपको बताया आगे, हम लोगों ने डेली ये कैलकुलेट किया, जैसे कि डैमेज टू द क्रॉप सो कंस्टिट्यूट मोर देन 60% ऑफ अ टोटल डैमेज इन इंडिया एंड हैंस अ ग्रेटर केयर इज नीडेड फॉर इट्स असेसमेंट. सो थस द करेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्लड डैमेज ऑफ अ क्रॉप इज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट द प्रीपेड जस्ट आफ्टर द फ्लड लेस एंड रिटर्न ऑब्टेन फ्रॉम अ रिप्लेसिंग आफ्टर द फ्लड. Rail and road communication in affected areas may be interrupted, resulting in a reducing earning of railways and transportation operation. Daily wage earning, so smaller peddler working in affected area may be suffer loss in their daily wages or earning. Cost of relief measures should be estimated. ये है ये घर गिर गया है फ्लड की वजह से, तो ये टेंजिबल लॉसेस के अंडर में आएगा. अब आएगा इनटेंजिबल लॉसेस. सो इनटेंजिबल लॉसेस आर दोज विच कैन नॉट एस्टिमेटेड इन अ मनी वैल्यूज. उसको हम लोग मनी वैल्यूज में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि ह्यूमन लाइफ, 20 लोग मर गए, तो उसको हम लोग मनी वैल्यू में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं. सो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कैटल, दैट इज कम्स अंडर द इनटेंजिबल लॉसेस. लॉस ऑफ अ हेल्थ ड्यू टू डिसीज कॉज्ड बाय अ फ्लड. फ्लड की वजह से बहुत सारे डिसीज़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो उसका लॉस होता है, वो इनटेंजिबल लॉसेस में आता है. लॉस कॉज्ड बाय सोशल डिस्ट्रेस. लॉस ड्यू टू अ हिंड्रेंस इन अ डेवलपमेंट वर्क्स ऑफ अ टाउन्स और सिटीज़. snakes bites and other physical ailments and hardships. So ये सारे जो लॉसेस है, ये सारे भी जो चीज़ें हम लोग सफ़र करते हैं ड्यू टू फ्लड, उसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल लॉसेस. ओके, अब ये जो चैप्टर हम लोगों ने आज पढ़ा है फ्लड्स को, उसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको GTU के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. तो एक्सप्लेन वेरियस कॉजेज ऑफ फ्लड्स, जो हम लोगों ने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में देखा था, कॉजेज ऑफ फ्लड्स. डिस्कस यूज़ ऑफ लीवीज एंड फ्लड वॉल्स फॉर अ फ्लड कंट्रोल. फ्लड कंट्रोल के लिए हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल. तो स्ट्रक्चरल के अंदर ये लीवीज एंड फ्लड वॉल्स था, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं फॉर फ्लड कंट्रोल. तो उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सब आपको देखना है. Explain structural and non-structural approaches of controlling damages due to a floods. या फिर हम लोग वो भी बोल सकते हैं फ्लड माइटिगेशंस मेजर्स. ठीक है, सो फ्लड उसके अंदर भी दो टाइप के थे, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल. सो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है.
बोथ क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। फ्लड मैनेजमेंट, डिटेल नोट ऑन फ्लड मैनेजमेंट, तो वो भी वो हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, सो हम लोगों ने उसको भी आगे देख लिया था। एक और क्वेश्चन है इंडियन रिवर्स एंड फ्लड्स, जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इंडिया के अंदर कितने कितने रिवर्स है, उसको कौन से 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लेक्चर्स में देख ली थी। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।